welcome back to my another channel. Oops. Welcome back to another podcast and very warm welcome. आज हमारा है 77 नंबर का पॉडकास्ट एंड आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो पंजाब से है एंड काफ़ी मज़ा आएगा बिकॉज़ वो जो वुमन की कम्युनिटी है एंड वहाँ पे हम काफ़ी लोगों के साथ हमने दोस्ती कर दी है। तो यस, आज हम इनवाइट करने वाले हैं, एक टीचर है और उनका नाम है नंदिनी मुंजाल। सी इज़ फ्रॉम पंजाब एंड हम आज उनके ही साथ डिस्कस करेंगे अबाउट द एजुकेशन जर्नी एज अ टीचर एंड एज अ somehow she is a marathon runner. So let's welcome to Nandini. Yes, Nandini. हेलो, एक बार हमारा नाम बोलो। हाय विजय। हेलो, हाय। Hi, कैसे how हो? are you? ऑल गुड। आप कैसे हो? I hope I'm audible. यस। Okay, great. Okay, so welcome our 77 podcast and so happy कि हम बहुत दूर डिस्टेंस पे हैं और आज हम कनेक्ट हो पाए। Okay. So second, I think getting your voice. Just a second. नो वरी, नो वरी, आराम से, आराम से। Am I audible? यस। Yes. Okay. I'm not able to get you. Should I Now? join? या यू कैन। अभी आवाज आ रही है? Yeah. Right. Okay. Great. डन। हाय श्रुति, हाय जफर, हाय मनीष। हेलो, हेलो एवरीवन। नाउ ऑडिबल? Yeah. Now I am able to hear you. That's great. So now let's begin. Let's welcome to our 77 number podcast. I जहाँ पे हम ज्वाइन हुए थे नीतू जी से और नीतू जी के बाद हम काफी आपकी कम्युनिटी के लोगों के साथ वन बाय वन कनेक्ट हो रहे हैं। We get the opportunity to connect Punjabi peoples to know each other's culture and lifestyle about the profession, career and journey. So पॉडकास्ट हमारा ऐसा ही होता है जहाँ पे हम काफी चीजें डिस्कस करते हैं और जो जो भी हम प्रोफाइल पे होता है उसके बारे में, उनकी जर्नी। सो आज का मस्त रहेगा बिकॉज ऑफ हम लोगों ने आरजे के साथ डिस्कशंस किया, आर्टिस्ट के साथ किया, बट अभी तक हमारे पास कोई टीचर नहीं थे। सो नंदिनी, आप कहाँ से हो और आपका एजुकेशन क्या है? Yeah, hi everyone. I am from Zirakpur, Punjab. It's near Chandigarh. And I'm a teacher teaching maths and science, both my favorite subjects. Okay. So आपने पढ़ाई किसमें की थी? हाँ जी? पढ़ाई किसमें की थी आपने? Actually, I'm a physiotherapist by profession. Okay. Then I just found my love for teaching, and here I am. Okay. So Yeah. कब आपको लगा कि as a teacher आपको ये journey में जाना है? Yeah, Which inspired? actually, when I was in college, even then I used to take classes like junior batches ka and hostel mein. I was not aware of this quality of mind, but yes, after marriage, after like kuch time tak I continued as physio only, but after that, when I just started taking up a class, a single class, then I just found, yeah, this is my real love. So I think I should go ahead with teaching, and now it's like wow. So जब आप कॉलेज में फिर तक पढ़ाते थे, अभी जो पढ़ा रहे हो वो मैथ्स
मैथ्स एंड साइंस, तो पर्टिकुलर क्या एडवोकेट करते हो, कौन सी स्ट्रीम के बच्चे हैं जिनको आप एडवोकेट करते हो, एंड आपकी इंस्टीट्यूट भी है, राइट? सो वो कैसे आपने स्टार्ट किया? जैसे होता है ना कि आपने कॉलेज टाइम से तो स्टार्ट कर दिया था, जी जी जी। राइट? उसके बाद जब आपने शादी की, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की, तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस आफ्टर अ मैरिज कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एवरीथिंग। सो वो जर्नी वापस कब आपने चालू हाँ जी, I started teaching in back in 2015 की? ओके, as a full-time teacher. I was like, I started teaching, but on one condition. I was ready to take the tuition classes, but I told my husband that I am not going to take the classes on the dining table. This is for sure. I want a proper setup for that. So slowly and slowly, I build up a classroom, proper classroom with a podium, blackboards, everything. So I wanted ki teaching, when you are teaching a student, now both teacher and student, they should be comfortable, right? ओके, If the student is not comfortable, na, he or she will not pay any heed to you, any heed. वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा इफ द स्टूडेंट इज नॉट कंफर्टेबल, राइट? जो आज की जनरेशन है ना, बहुत स्मार्ट है, राइट? दे जस्ट लिसन टू द पर्सन्स whom they consider कि हाँ इनकी बात सुननी चाहिए. That's it. यस, दे हैव So हमें yes 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 and I totally agree with this thing. So that was the scene कि नहीं भाई, मुझे अगर क्लास लेनी है तो it has to be in a proper atmosphere. No काम चलाओ काम. जी. सो मैथ्स एंड साइंस, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपने क्यों सिलेक्ट किया? मेरा शुरू से ही फेवरेट रहे मैथ्स एंड साइंस, या ये कह लो कि आई वाज ब्लेस्ड टू हैव गुड टीचर्स एट माय टाइम, सो दे जस्ट इनकॉर्पोरेटेड दैट इंटरेस्ट. तो मैं चाहती हूँ कि वो इंटरेस्ट, वो एक सब्जेक्ट को लेके जो एक पैशन है, वो मैं आगे पास ऑन कर सकूं, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यंग इंडिया, है ना? अगर अच्छे स्टूडेंट्स आगे आएंगे तो देखिए ये भी एक तरह की देश सेवा है. एवरीबडी कैन नॉट जॉइन आर्मी, सो वी आर प्रिपेयरिंग दैट. या सो आई फील कि मैं वो जो पैशन फील करती हूँ ना, आई जस्ट वांट टू पास दैट पैशन टू माय स्टूडेंट्स. राइट, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं भी ऐसे स्टूडेंट हूँ कि मुझे मैथ्स Okay. एंड साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है, जी जी. मेरे को समझ में ही नहीं आता क्योंकि मुझे कोई अच्छे टीचर्स नहीं मिले जो हाँ, मुझे जो बिल्कुल. सब्जेक्ट समझ में आया ना. या क्योंकि टीचर्स दे रियली इम्पैक्ट योर लाइफ, रियली. तो लाइक वी वर वेरी ब्लेस्ड टू हैव गुड टीचर्स, ऑल्दो अभी बहुत अच्छे टीचर्स हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत है, सब कुछ है, बट एक बॉन्ड बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के साथ. मेरा सब्जेक्ट जब तक मैं पढ़ रही थी तब तक आई डोंट हैव गुड टीचर्स, बट मैं 10th स्टैंडर्ड में आई, 9th और 10th में, तब मुझे एक ऐसे टीचर मिले, ही इज गुड इन हिस्ट्री. ओके, ग्रेट. एंड 10th का रिजल्ट आया ना, इसमें हिस्ट्री में ही मैंने 95 प्लस लिए थे, बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक. सुपर. सो आई स्टिल वो मेरे जो पेरेंट्स है, मेरा मायका है, वहाँ पे वही सोसाइटी में वो टीचर रहते हैं. सो अभी भी वो देखते हैं, उनको पता है कि जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, एंड अभी भी काफी लोगों को बताते हैं कि सी वाज माय स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड, एंड अब देखो. एट दिस मोमेंट यू फील सो प्राउड. बिकॉज वो सब्जेक्ट वहीं से ही स्टार्ट हो गया. सो नाउअडेज कोविड के बाद के जो भी जनरेशन है और जो बच्चे को एक हैबिट बन गई है कि they are very addict with electronic gadget, I know, right? As yeah. as compared to notebooks and all. So how you teach them and how you stay away them for this kind of gadget, because calculator आ गया तो maths की value zero हो जाएगी. जी So जी जी. what kind of टेक्निक जिससे स्टूडेंट एंगेज रहते हैं, बच्चे एंगेज रहते हैं, सो ऐसा क्या करते हैं? बिल्कुल, that's really मैं ये कहूँगी it was a very tough time when I like we all faced corona. हमने बहुत बहुत कुछ फेस किया, and I believe कि जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, that community was at the major loss. क्योंकि जो ड्यूरिंग द कोरोना बैच था that was okay, क्योंकि they were like
they were उनकी वो ग्रिलिंग की आदत थी, उनके बेसिक्स क्लियर थे. बट द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन द 6th 7th 8th, ये वाला जो ग्रेड आया आगे, this was very difficult to deal with, very difficult, बहुत डिफिकल्ट था. बिकॉज इनका कंसंट्रेशन नहीं बैठता था, इनको लिखने का मन नहीं करता था. नहीं, वी आर मैम ओके विद द एमसीक्यूज, जस्ट गिव द एमसीक्यूज, वी आर फाइन, नो रिटन क्वेश्चंस एट ऑल. सो मैम ओरल ले लो, कोई टेंशन नहीं है मैम, ओरल टेस्ट ले लो. So I came up with an idea. I started taking up marathon classes. I combined marathon with my science and mathematics. And you won't believe, my students really supported me. And the very first marathon was of chemistry marathon. Can you imagine? We did 200 questions in one go, all written, one go. It was like a sprint marathon. Wow, So I tried, yeah. Then I came up with some maths tambola, maths ludo, snake and ladder. So in that subject, not only with the teacher, but they should be physically and mentally present. So I took these things, took these steps, and the most important step was they had to deposit their phones with me during the class. Because I don't have faith. You can't have faith. बच्चे books के बीच में phone रख के they can do anything, because Corona has taught them some bad things also. Yeah. And हमें ये चीज को accept करना चाहिए. The cheating, the illegal things, है ना, वो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा है. तो I made it clear, बेटा, you have to deposit your phone when you are entering the class. तो गॉड से ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हुआ. एंड अभी भी आई एम करंटली आल्सो आई एम ऑर्गेनाइजिंग सच काइंड ऑफ मैराथन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. दैट्स ग्रेट, बिकॉज ऑफ आपकी प्रोफाइल में भी वो दिख रहा है, मैं देख रही हूँ कि कर रहे हैं. सो आप जब एज अ टीचर इस तरह के एक्टिविटीज से काफी स्टूडेंट को कनेक्ट करते, तो व्हाट अबाउट देयर पेरेंट्स appearance, उनका कैसा रहता है? If they appreciate, they are happy with their child's this kind of activity. And what about the moms exactly, the expression about this kind of such activity? जी जी जी. See, when a parent sends their child to my tuition classes, basically it's a coaching class, so their expectation is कि बच्चा पढ़ के आ जाए, right? अभी the thing was in my mind कि the topic should be very much clear. It should be not some muggification. मतलब मुझे muggification पे belief नहीं है. I want कि जो student है, the topic should be crystal clear. And I encourage each and every student to ask their doubts. And you won't believe, when I started conducting these marathons, I really just saw such a commendable improvement in the performance. Because आप अगर एक साथ 500 questions कर रहे हैं, 200 questions कर रहे हैं, चाहे आप उसको oral सुन रहे हैं, still you remember those things, and they kept on doing these things. So it creates an interest in the students, and no student takes leave. That is my award. Amazing. That's great. So कोई ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ में कि कोई एक बैच गई है, उसमें से पर्टिकुलर बैच या पर्टिकुलर ग्रुप या स्टूडेंट ऐसा है जिसके साथ आपकी एक ऐसी मेमोरी है जो आपको कभी भी ऐसे रिकॉल करते तो आपको हंसी आती है, एक स्माइल आ जाती है कि नहीं ये तो था, मतलब काइंड ऑफ फनी, जैसे अभी आपकी फेस पे मैं देख रही हूँ, लाइक दिस. सो इज देयर एनी स्टोरी रिलेटेड टू दिस? एक्चुअली वैसे तो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ आई शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, क्योंकि आई बिलीव दिस थिंग कि जब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं है ना, वो आपसे अपने डाउट्स शेयर करेगा ही. वो एक बाउंड्री लाइन बना के रखता है, एंड वो बच्चा आपके साथ कभी भी डाउट्स नहीं शेयर करेगा. सो एक वाइब्स तो खैर मैच करती हैं स्टूडेंट्स के साथ, बट यस बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं विच मेक मी फील लाइक यार नहीं, जैसे on Teachers Day I get so many messages, I get so much of appreciation from them, so much of love, and every year they remember my birthday. बेशक वो
2018 के बाद इंस्टीट्यूट भी नहीं आए हैं, 17 के बाद नहीं आए हैं, पास आउट हो गए हैं, स्टिल दे रिमेम्बर एंड दे कम स्पेशली टू मीट मी. This is no less than a trophy, I believe. उनके वो मैसेजेस, उनके वो कार्ड्स, सरप्राइजेस देना मुझे तो वो लगता है कि नहीं, somehow I have put an impact on them, कि वो एक अच्छे ह्यूमंस भी बने, अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ. तो कोशिश तो रहती है, बाकी सब लाइज इन द हैंड्स ऑफ गॉड. सो कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक ऐसी बैच हो जो उनकी स्टडी, आपके जो भी ग्रेड्स के बाद आगे का उनको फर्दर के लिए जाना पड़ता है, सो ऐसी कोई बैच थी जहाँ पे आप इतना इमोशनली टच हो गए कि वो बैच गई ना, फिर भी आपको कभी ना कभी लगता है नहीं यार, ये एक बैच ऐसी थी जो हमेशा हर टीचर के फेवरेट रहती. सो इज देयर एनी बैच और इज देयर एनी मेमोरी? बैच मेरा वैसे तो खैर काफी हर साल मुझे रुला के जाते हैं जब भी फेयरवेल होती है हमारी. दे मेक मी क्राई, बट यस यू आर राइट, फेवरेट्स तो रहते ही हैं. तो 2018 का जो मेरा बैच था वो मेरा बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि दे हैव सीन मी ग्रो. They were with me in my difficult times, they were there in my happy times. तो उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था. दे स्टार्टेड अप विद लाइक जैसे दे वर इन 7th स्टैंडर्ड व्हेन दे केम टू मी फुल बैच, एंड दे कंटिन्यूड टिल 10th. सो दैट वे वी रियली शेयर्ड अ वेरी गुड रेपो. तो बहुत अच्छा लगता था उनको पढ़ाकर. जब गए तो लगा कि हाँ कुछ अपना गया. हाँ, क्योंकि वो एक बॉन्डिंग बन जाता है. जी जी जी. बिकॉज आई वॉज लेक्चरर इन 2012. 10th स्टैंडर्ड से मैं लैंग्वेज क्लासेस करवाती थी. ओके. सो 10th, देन मेरा डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर, तब तक मेरा चलता रहा पढ़ाना. फिर कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाती थी. ओके. उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए आई टेक डिसीजन कि मुझे मास्टर करना है. देन आफ्टर आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस एंड ऑल दैट. सो आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ मैंने 10-12 साल ये इंडस्ट्री में डाले थे बच्चों के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ. तो ये जो आपने बोला ना, हर मोमेंट मैंने जी है 2012 तक. सो रहता है, हर ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, बिकॉज वो एक मेमोरी लाइफ में रहती है बच्चों की कि हमारे ऐसे टीचर थे, ये थे. एंड अभी भी काफी ऐसे स्टूडेंट है जो मुझे 2010 की साल में मैंने उनको पढ़ाया था, 10-12 में. एंड अभी वो लोग मुझे मिलने भी आते थे ऑफिस में. सो टिल मतलब हम, मेरे पास पूरे 3 साल में एक कॉलेज में थी, और 3 साल के अंदर जितने भी बच्चे थे वो सारे अटैच हो गए. टिल एवरी सिंगल स्टूडेंट कनेक्ट विद. सो एक मेमोरी हो जाती है कि स्कूल में तो मेरी स्कूल 2-3 ऐसे चेंज हो गए. आई एम काइंड ऑफ लेजी स्टूडेंट, आई डोंट लाइक पर्टिकुलर टीचिंग. कोई पढ़ाए मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पता भी नहीं चलता. बट खुद से यूट्यूब से पढ़ पढ़ के मैंने किया था, तो स्टूडेंट्स की जर्नी मुझे पता थी. और यस, बर्थडे हो या फिर टीचर्स डे पे सेलिब्रेशन, लाइक वो ऐसी ही सरप्राइजिंग होती है ना कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती है. सो यस, आई टोटली रिलेट विद दिस. ये जो आपने गेम मैराथन वाला जो आपने बोला, वो आपको आइडिया कैसे आया और आपको कैसे लगा कि एग्जीक्यूट होगा? जैसे आपने फर्स्ट बार ट्राई किया तो इन फर्स्ट टाइम में ही आप सक्सेसफुल हो गए बच्चों का इतना इन्वॉल्वमेंट देके, और आपको कब किस टाइम पे ऐसा लगा कि दिस इज द राइट थिंग जो बच्चों के साथ करनी? इन जनरल ऑल किड्स लाइक गेम्स, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज अभी तक मेरे लिए भी अभी नया है कि मैंने पहली बार सुना कि दैट वी कैन डू इट. Actually, I was a sports person, और मुझे अभी भी like I'm a marathon runner. तो when I first time like after a gap, मैंने जब 5 किलोमीटर रन किया ना, तो I just thought of कि हाँ, कि इस एजुकेशन को हमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए. बिकॉज जो मैं मानती हूँ ना, वो ये है कि जब आपको कोई काम अच्छा लगता है ना, आप बड़े मन से करते हो, है ना. एंड स्टूडेंट्स दे लव स्पोर्ट्स और दे लव टू प्ले, राइट. कुछ ऐसा होता है कि आप खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है.
सो आई थॉट ऑफ कि यार अगर हम साइंस को, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को जिनसे ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, राइट, दे गेट स्केयर्ड ऑफ मैथ्स, अरे यार इतने सम्स करने पड़ेंगे अब, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, राइट। तो आई थॉट ऑफ बिल्डिंग दिस स्पोर्ट्समैनशिप। तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, और मैं ये बड़े नए तरीके से आई पुट एन आइडियाज, अलग अलग तरीकों से कोशिश करती हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ इनोकुलेट करते रहें। तो ये मेरा सोचने का सोच थी इसके पीछे। ओके, सो किसी को भी एज अ एजुकेटर का करियर बनाना है, सो लाइक आप उनको क्या एडवाइस दो? देखिए एजुकेशन फील्ड में स्कोप तो बहुत है, राइट, वी हैव लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि नेचुरली देखिए स्कूलिंग है, कॉलेज स्टडीज हैं, यू नीड एजुकेटर्स, बट बीइंग एन एजुकेटर इज नॉट ओनली फॉर जस्ट अ जॉब सेक, नो, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इफ यू रियली इंजॉय द कंपनी ऑफ स्टूडेंट्स, यू रियली वांट टू डील विद देम, आपको तभी एजुकेशन फील्ड में आना चाहिए, है ना। अभी क्या रहता है कि वी हैव लाइक क्या कर सकते हैं, हमारे पास करियर ऑप्शंस नहीं होता, चलो हम टीचिंग कर लेते हैं, बट टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, बिकॉज यू हैव टू वाइब अप विद द स्टूडेंट्स, so that students open up. Along with that, you have to maintain the discipline, you have to inoculate moral values, you have to inoculate civil values, आपको स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें उन्हें सिखानी होती है जो सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड नहीं होती, बिकॉज आपकी पूरी पर्सनालिटी इज विजिबल टू द स्टूडेंट। तो आप जैसे हैं वैसा ही स्टूडेंट्स की तरफ एनर्जी पास ऑन होती है। इफ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिविटी विल फ्लो, दैट इज फॉर श्योर। तो if you are opting for education career, do make sure that it is a task of responsibility and do this thing very honestly. Okay, so there are a lot of storytelling teachers, right? कि उनको जो बताना होता है, they have to give a story, और story जी telling से उनको पूरा teaching करवाते हैं. So what kind of tool you are using to teach your students? Like what is the method that you have to use? Because मैं just एक स्कूल में गई थी जब मैं 10th और 12th में थी तब, तो हर टीचर की कुछ एक यूएसपी होती है पढ़ाने की, नंबर्स याद रखने की, बिकॉज आई एम टिल डेट आई एम नॉट गुड इन टू नंबर्स, जी जी राइट। सो मैं ट्राई करती थी बिकॉज ऑफ आई नो कि मेरे फैमिली में भी कोई मैथ्स में पावरफुल नहीं है, कोई भी नहीं। वो क्या कभी कभी हेरिडिटी में आता है, ब्लड में आता है, मेरे पास वो भी नहीं है, और मैंने फिर छोड़ दिया, नहीं करना है, आई गुड इन हिस्ट्री, आई गुड इन मैनेजमेंट, इट्स ओके, मेरे को मैथ्स में नहीं जाना। सो देर आर लॉट ऑफ टेक्निक जो मैंने ट्राई की थी, बट इधर जा ही नहीं रहा था, तो फिर आई लेफ्ट, चलो हम किसी और के लिए बने हैं, मैथ्स को छोड़ देते हैं। सो जी जी is जी there any technique that you have to use to like teach your student to like जो उनका बोलते हैं ना याद रखने का तरीका है या हाँ formulas जी कुछ ऐसा ना, so their kind of tactics, जी जी so जी do जी you have this thing, आप ऐसे कुछ I करते do हो? make lot of short forms. We make up like story, जैसे आप बता रहे हैं, साइंस हम साइंस में काफी स्टोरीज हम साथ में इंक्लूड करते हैं, क्रॉसवर्ड्स होते हैं, वन वर्ड होते हैं, फिलअप्स होते हैं, सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं। सो शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो काफी हम ढूंढते रहते हैं और बनाते भी हैं अपनी खुद की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरा, एक इंटरेक्शन जो है वो एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर आप अपनी बात काफी एनर्जेटिकली कह रहे हैं तो स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, क्योंकि क्या रहता है जो एज है ना टीनेज, इसमें क्या रहता है, बच्चा इज प्रेजेंट फिजिकली बट वो मेंटली कहीं और ही होता है। तो यू हैव टू बी लाइक, यस यू हैव टू बी अ लिटिल बिट लाउडर, क्लियर एंड थोड़ा सा वाइब्स जो है ऐसी आनी चाहिए, ऐसी बनानी पड़ती है हमें। उसके बाद आई यूज कलर्ड चॉक्स, आई डोंट यूज मार्कर्स, मुझे नहीं पसंद है। आई यूज कलरफुल, मुझे कलरफुल पढ़ाना बहुत पसंद है। प्रॉपर पूरा ग्रीन बोर्ड पे यू हैव टू हैव सम डिफरेंट कलर्स सो दैट आई कैन हाईलाइट द थिंग्स, so that generates a kind of interest in the students.
ओके, सो अभी इतना सारा डिजिटलाइजेशन आ गया है. फॉर एग्जांपल जैसे बायजूस है, देन और एक दो ऐसी थी, वाइट जूनियर हेड करके कुछ थी, राइट. जी सो जी. देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, आकाश ऐसा कुछ है. सो ये चीज़ों में लोग बच्चे चले जाते हैं और एक ऑफलाइन है. सो इन व्हाट योर थॉट कि बच्चे को कौन से लेवल पे ऑनलाइन एजुकेशन पे जाना चाहिए और कितने लेवल तक, कितने ग्रेड तक ऑफलाइन पे ही जाना चाहिए. दैट मीन्स इम्पैक्टफुल कौन सा रहता है, हेल्थ वाइज एंड द करियर वाइज एंड देयर मेंटल कंडीशन एज वेल. देखिए every aspect has got the two sides, right? Positive भी है, negative भी है. If I'm talking about the offline thing, तो naturally इसमें भी you have the advantages, you have the disadvantages also. अगर online बच्चा opt करता है, उसमें भी the same scenario is there. So it is the personal choice. And अगर if I would be suggesting, तो मेरे हिसाब से तो it is offline, because online क्या रहता है कि distraction बच्चे को हो ही जाती है. 10 में से कोई 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं which are who are very serious and they would take up the class very sincerely, बहुत अच्छे से लगाएंगे, and after that I'll keep the phone और laptop और iPad साइड पे रख देंगे. बट जो बचे हुए 8 स्टूडेंट्स हैं ना, आधे टाइम तो वो क्लास नहीं लगाएंगे. जो आधे टाइम वो क्लास लगाएंगे उसमें उनको आधा अधूरी चीज समझ में आएगी. सो द टॉपिक राइट. इज नॉट दैट क्लियर, है ना. तो वो डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हो जाती हैं, उसके एडवांटेजेस को वो ओवरवे कर लेता है. दैट इज द प्रॉब्लम, और कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज तो देखिए टेक्नोलॉजी का हमें एडवांटेज हमारे हाथ में है उठाना, बट अब क्योंकि बच्चे हैं, अब डिस्ट्रैक्शंस तो होती ही हैं राइट. तो उस वे में फिर ऑनलाइन थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हो जाता है. अदरवाइज उसके एडवांटेजेस तो हैं ही हैं, काफी हैं. राइट. सो बच्चे, ये जो डिजिटलाइजेशन की वजह से काफ़ी बच्चे को होमवर्क करना और नंबर्स वगैरह नहीं मजा आते हैं. सो हाउ यू हेल्प देम टू स्टे विथ पेन एंड पेपर, बिकॉज काफ़ी टिल डेट ऐसे लोग हैं कि उनका ऐसा ही होता है कि डिजिटली आर everywhere, every connected, right? But till day, I believe in pen paper because वो छप जाता है यहाँ पे, जी जी. टाइपिंग नहीं छपता है. सो व्हाट योर थॉट, और इन फ्यूचर एजुकेशन आता है डिजिटलाइजेशन पे, सो क्या लगता है, मतलब इज दिस राइट और समहाउ आप पार्शियली अग्री करती हो क्या? देखिए पार्शली तो आई एग्री कि ठीक है, बहुत अच्छी चीज है. हम ये नहीं कहते कि इसके सारे ही लाइक दे आर हैविंग ओनली बैड इफेक्ट्स. नो नो नो, यस. अच्छे इफेक्ट्स भी हैं, नो डाउट. बट क्या रहता है कि इट हैज टू बी अंडर सुपरविजन, है ना. अगर तो सुपरविजन पॉसिबल है पेरेंट्स की, तब तो देखो बहुत अच्छी चीज है. आप देखिए कहीं पे भी बैठे हैं कंट्री में, किसी भी साइड हैं, इवन आउटसाइड द कंट्री हैं, आप कहीं से भी किसी भी अच्छे टीचर का लेक्चर सुन सकते हैं. आप यूट्यूब पे उस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं. ये चीजें हमारे टाइम में नहीं थी कि हम वी कुड नॉट गेन द एक्सेस टू दीज थिंग्स, राइट. हमारे टाइम पे नहीं थी ऐसी फैसिलिटीज, बट ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है. यू बट हाँ, इसके लिए सुपरविजन बहुत जरूरी है बच्चों के ऊपर. अगर आप सिर्फ बच्चों के हाथ में दे देंगे तो मैंने कहा ना कि रेशियो बहुत कम है जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करता, ऐसा नहीं है. बहुत बच्चे उन्होंने कोरोना टाइम में बहुत इम्प्रूव भी किया है, क्योंकि वो फिजिकली टीचर से डरते थे, राइट. दे यूज टू बी यू नो शाय टू आस्क क्वेश्चंस. वो चीज हट Yeah. गई क्योंकि फिजिकली तो टीचर प्रेजेंट नहीं है. आप पूछ सकते हैं कुछ भी, आपका जो भी डाउट है यू कैन आस्क, टीचर वोंट से एनीथिंग. तो उनके लिए वो बेनिफिशियल हुआ सिचुएशन. बट जो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन में चले गए, उनके लिए फिर वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया. तो दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. सो डिजिटल पे ही हम हैं, तो आपने इंस्टाग्राम को कब एक्सप्लोर किया, वहाँ पे आप कैसे आए एंड हाउ हेल्प टू ग्रो मोर? या देखिए जब कोरोना फेज आया ना, तो आई स्टार्टेड टेकिंग अप ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे कि नहीं मैम वी हैव टू टेक द क्लासेस, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग ऑनलाइन थिंग, वी जॉइन यू. So I started taking up and I recorded the things. In that phase, I faced the technology that पास से उस टेक्नोलॉजी को फेस करना उसी टाइम पे सीखा.
So how to take the classes, how to make the notes, how to visualize the things, how to make the videos, then test papers, all these things we learn in that phase only. And अभी तक उसका फिर हमें utilization तो होता ही है, right? So as a teacher, as a mother, as a like फैमिली को मैनेज करना, सो हाउ यू मैनेज योर कंटेंट, आप कैसे कंटेंट बना देते हो, कैसे उसको रखते हो, हाउ यू अपडेट योरसेल्फ विद द इंस्टाग्राम अपडेट्स? देखिए, that is a really good thing. I say कि my batches run from 2 to 9 daily, 2 in the afternoon till 9. But before 2, I spend around 3 to 4 hours daily of my self-study. Despite knowing the topic, despite knowing everything, हम अगर ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमें सब कुछ आता है, तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है, right? आई एम अ काइंड ऑफ टीचर जो ये सोचता है कि नहीं, मुझे अगर एक कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे आई एम लर्निंग, right? Because today generation, they have got very curious minds and they want their queries to be settled down. उनको चाहिए है Yes. कि नहीं, हमें हमारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए. If they are not satisfied, they again ask up, है ना? They can't move on कि नहीं जी, चलो चलो आगे चलो, हो गया Keep नहीं. asking. And जी जी जी. एंड तो उसके लिए देखो, यू हैव टू प्रिपेयर वेल. ऐसे नहीं है आप कुछ भी हवा में बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? अब जैसे मैथमेटिक्स है, अगर आई एम गोइंग फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आई नीड टू नो द बेसिक्स, आई नीड टू नो एवरीथिंग. कौन सी चीज हम कहाँ पे लगा रहे हैं, आई शुड हैव द वैलिड रीजन. Similar is the case with science. I cannot say anything just any. No, I have to give them facts. मुझे facts देने हैं उनको. Now I have started up taking 11th and 12th classes, mathematics, biology and chemistry. And 11th ka chemistry, maths, biology is so interesting. But if you are making them interesting to the Yes. students, right? You are the bridge between student and the books. So the bridge Right. has to be updated. Right. बिकॉज काफी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब स्कूल में बच्चे होते हैं ना, तो जैसे हाफ एन आवर के बाद चेंज होता है, टीचर चेंज होते हैं, सब्जेक्ट चेंज होता है, सो दैट टाइम पे उनके एक्सप्रेशन बताते हैं कि उनके फेवरेट टीचर्स आ रहे हैं या फिर सो जाना है, कि अब लगता है कि नहीं, अब एनर्जी खत्म हो गई. सो वी रियली फील दैट कि भाई कौन से टीचर, और पता चल जाता है कि जिस क्लास में से जोरों से ग्रीटिंग की आवाज आई, दैट मीन्स ये क्लास के फेवरेट टीचर ये है. और सो जाते हैं या टीचर इतना चिल्लाते, समझ लो कि ये टीचर में कुछ गड़बड़ी है या बच्चे में कुछ गड़बड़ी है, वहां पता चल जाता है. यू कैन इजीली जज, बिकॉज ये दोनों चीजें हैं. मुझे मौका मिला था 6 मंथ के लिए एक लाइक 0 लेवल से लेके 12th ग्रेड के बच्चों के अंदर 10th 11th 12th के बच्चे को कंप्यूटर के लिए. सो आई नो कि कैसे होता है, दे हैव टू कंप्लेनिंग मी, वो टीचर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. आई वाज जी लो, मजे करो. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू जस्ट लिव. मजे की लाइफ है, क्योंकि यही अच्छा वाला टाइम है पढ़ने का. उसके बाद तो फिर सो देखा था मैंने कि बोलते कि हमारे फेवरेट, मेरे साथ बैठते थे बच्चे, हमारे फेवरेट टीचर ऐसे है, ये वाले ऐसे है, इनसे हमें समझ में नहीं आता. आज तब पता चला कि हमें खुद को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम उसके दिल में उतरते, तब जाके उसके दिमाग में हम सब्जेक्ट वॉट एवर वी हैव टू, हाँ वो एक होता है. सो ये मैंने फील किया था, तो पता है कि बच्चे और अटैच हो जाते हैं कि मदर के बाद जो दूसरा उनकी लाइफ में होता है ना, वो एक टीचर होता है हमेशा. कि वो काफी ऐसे बच्चे होते हैं लाइक बॉय और गर्ल की पेरेंट्स को नहीं बताते, बट टीचर को सारी चीजें शेयर करते हैं. तो काफी बार ऐसा भी हमने देखा है कि काफी बच्चों का जो एक लेवल होता है, एंजाइटी में आ जाते हैं या फिर डाउन लेवल होता है ना, तो पेरेंट्स नहीं और कोई नहीं, उनके टीचर उनको समझ के लेके बाहर आते हैं और उसकी लाइफ बनाते हैं. तो टीचर का इस लेवल तक का रोल भी मैंने देखा है काफी लोगों की लाइफ में. बिल्कुल ठीक. Teachers, they really hold a very good impact on students' life. They really, because बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड होता है. 8 hours is not a small time. आप स्कूल टाइम में बिता रहे हो, उसके बाद आप ट्यूशन क्लासेस जा रहे हो, you are in contact with the teacher continuously. Right, right. So
ये तो कंटेंट आप सीख लिए, आप एडिटिंग खुद करते हो या फिर आपका बेटा या कोई कर रहा है? देखिए, स्टार्टिंग में माय सन हेल्प एंड माय स्टूडेंट्स हेल्प। टू बी ऑनेस्ट, मेरा अगर यूट्यूब पे चैनल है या इंस्टा पे कोई अकाउंट है, ये सब के पीछे मेरे स्टूडेंट्स हैं। राइट, दे इनकरेज मी, दे टोल्ड मी मैम आजकल टाइम सोशल मीडिया का है, आप सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हो, इस पर भी ध्यान दो। तो मैंने कहा ना कि हम भी स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। तो दे टॉट मी दीज थिंग्स एंड कंटिन्यूसली वी आर लर्निंग, और हम तो सब लर्नर्स हैं ही हैं टीचर्स के साथ साथ, राइट। ओके, सो लास्ट में आप स्टूडेंट्स को और पर्टिकुलर ये दोनों सब्जेक्ट को लेके किसी को करियर बनाना है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, लास्टली मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि देखिए बेटा, स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, आप बेशक कुछ भी आगे लाइफ में करिए, लेकिन एक स्टडी वाइज आपके पास एक साउंड बेस होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन रियली मैटर्स। हमें इस एज में नहीं पता चलता कि क्या करना है यार, ये ट्रिग्नो कहीं काम तो आनी नहीं है, छोड़ो, ये फिजिक्स के लॉज, ये हमें कुछ नहीं समझ में आता। आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट अभी इस टाइम पे यू आर नॉट अलाउड टू चूज योर स्ट्रीम। आपको जब तक स्ट्रीम चूज करने का मौका मिलेगा, अगर हम ये चीजें नहीं पढ़ाएंगे आपको तो बहुत लेट हो जाएगा। सो डू स्टडी हार्ड। आपको इस टाइम पे बहुत मेहनत करनी है सो दैट आगे आपका फ्यूचर अच्छा जाए। दूसरी बात, डू नॉट लूज योर ह्यूमैनिटी। जेंटल रहें, हम्बल रहें, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें। ये एक अच्छे स्टूडेंट की बहुत बड़ी निशानी होती है। नेवर एवर से बैड वर्ड्स और हार्श वर्ड्स टू एनीवन। एंड लास्टली, प्लीज डू समथिंग फॉर योर सोसाइटी ऑल्सो। आप एनवायरनमेंट के लिए, पानी के लिए बहुत एफर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों की बात ना बड़े टालते हैं और ना बच्चे खुद टालते हैं। तो इसीलिए इन 3 चीज़ों पे ज़रूर काम करो। अपनी सोसाइटी के लिए ज़रूर कुछ करो, एनवायरनमेंट के लिए करो, और पानी को ज़रूर बचाओ। सो यू हैव टू सेव वाटर, क्योंकि अगर हम आई रियली फील बैड कि हम आपको कैसा वर्ल्ड देके जा रहे हैं, बट चलो, अब everybody is not responsible, but yes, we have to take up the thing. So do follow some methods. आप खुद अपने तरीके निकालो कैसे हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, राइट। एंड एज अ टीचर तो यही कहूँगी कि हाँ, पढ़ाई अच्छे से करेंगे, चूज योर स्ट्रीम वाइजली एंड चूज योर फ्रेंड सर्कल वाइजली। आपका पीयर ग्रुप बताएगा आपका कि आप क्या बनेंगे। सो चूज योर पीयर ग्रुप वेरी 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 वाइजली, क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। एंड इन केस एज ऑफ 50 में भी पड़ता है, या क्योंकि काफी ऐसी बैचेस। जी हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल। साइंस और मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट्स हो, यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टा हैंडल एनी टाइम। व्हेनेवर आई सी, आई डेफिनेटली आंसर यू बैक। बट यस, डू स्टडी हार्ड और बहुत अच्छे से पढ़ें। वी हैव आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, निम्स क्लासेस करके हैं, आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दैट्स ग्रेट। आप इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी आके जो मैराथन वाला है ना, कुछ ऐसा भी गेम्स रखो बच्चों के लिए। आई नो अभी हमने डिजिटल से काफी दूर रखा है, लेकिन आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के लिए हम अलाउ कर सकते हैं, बिकॉज दिस अमेजिंग आइडिया and mothers and students loved this one concept. Thank you so much. It was really nice talking to you. Same here. Bye bye. Have a हाँ जी, great time. bye. हाँ जी, bye everyone.